Enjoy in nothingness and in everything. और क्या हमने कुछ भी ना होने खालीपन में भी आनंदित रहना सीख लिया है। As a measure of your grace, the expression of your grace on you. और यही हमारा अनुग्रह का मापदंड होगा प्रकट करने का कि हमारे पास कितना अनुग्रह है। The abundance of their joy in the deep and the great trial of affliction. क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Now the second one is, दूसरी बात, already it is said that they were poor, but they are the abundance of their joy. They are the group who are enjoying their life apart from other things. जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो गरीब तो थे, लेकिन आनंद के कारण, वो अनुग्रह के आनंद के कारण वो हर समय हर्षित और उल्लासित रहा करते थे। And look at the second part of it. और दूसरे बात को उसमें देखें, In their deep poverty, that means they were not only poor, very poor. They had nothing to depend upon. They were utterly poor. And then look at the next expression. In their deep poverty, abounded in the riches of their liberality. और कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। How can you be liberal when you yourself are in deep poverty? आप कैसे और जो बहुतायत से देने वाले हो सकते हैं जब आपके पास स्वयं कुछ ना हो। So that is what we think. और यही बात है, इसको सीखना है। But these here early Christian teachers are very important thing. और तारक मसीह लोग हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे सिखाते हैं। You can be very much liberal even when you are in deep poverty. हम बहुत देने वाले हो सकते हैं जब हम काफी कंगालपन में भी हों तब भी। Yes. Just not because you have to, you do things because you do it because you want to. ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है इसलिए करना है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए आप करते हैं। That makes a big difference. और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। God has taught me that. और परमेश्वर ने ये मुझे सिखाया है। Oh, I have to pray. Oh, I have to preach. Oh, I have to take a class. It's a long list. I have to do this. I have to do that. But the main thing is, do you want to do that? मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे प्रचार करना है, क्लास लेना है, लेकिन क्या सच में मैं ये करना चाहता हूँ? When you want to do that, जो आप वो करना चाहते हैं, एंजॉयमेंट के साथ और दूसरी आत्मा वहाँ पे कार्य करना आपका देती है। whatever happens, I will do it. I have to do it. I want to. चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए मैं उस बात को जरूर करूँगा। All these years I have taken my teaching ministry like that. और इसी प्रकार से पिछले वर्षों में मैंने अपनी शिक्षा की सेवकाई को इसी तरह से दिया है। I was a teacher for my life. और पूरे जीवन भर मैं एक शिक्षक के रूप में रहा। I had wanted to become a doctor. और मैं चाहता था कि मैं एक चिकित्सक बनूं। That was my great ambition. और वो मेरा एक लक्ष्य था। When I was a young man, I had just passed out of college. I wanted to do like medical thing and I wanted to become a doctor. और जब युवावस्था में जब मैंने कॉलेज पास किया तो मैं उस समय चाहता था कि मैं चिकित्सक बनूं। To be honest, it was not for earning money, but I wanted to be a doctor to serve among people where other people will not go, and there I can serve. It was with an innocent purpose. और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि ये पैसा कमाने के लिए नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था जिन जगहों पे लोग नहीं गए हैं मैं वहाँ तक पहुँच के लोगों की सेवकाई करूँगा। God may have been looking at me and saying, "This fellow is asking for a very foolish thing." और शायद परमेश्वर मेरी ओर तो देखता होगा और बोलता होगा कि ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें मांग रहा है। My wife is sitting here. She will always say, "You always remember, you forget things. You leave one thing there and then go." And she will say, "You have to operate a person. You will operate. You have to leave the scalpel there and go somewhere." She always says. और वो मेरी पत्नी हमेशा कहती है तो चीजों को याद रखते हो, सच्चाई है, थोड़ी सी चीजें तुम याद रखते हो तो डॉक्टर के लिए योग्य नहीं हो। God have
already seen that. लेकिन परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था। And so he said, maybe I can use you if you become a teacher. परमेश्वर ने कहा होगा कि मैं तुम्हें और इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर तुम शिक्षक बनो तो For that matter, I come from a teacher family. उसके लिए मुझे शिक्षक परिवार से आना होगा। My mother was a primary school teacher. और मेरी जो मम्मी है, माता जी थी, वो प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक थी। Not just a primary school teacher. All people loved her, respected her for the way she taught the little children. केवल वो एक छोटी स्कूल के प्रारंभिक स्कूल की शिक्षक ही नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो प्रेमपूर्वक बच्चों को पढ़ाते थे, उसके लिए लोग उनसे बहुत प्रेम रखते थे। My father was one of the first teachers who has been called from some place, seeing that he had passed class 10. Somebody walked all the way and called him and brought him to the village where he was. और एक ऐसे जगह पे जब 10वीं को क्लास भी नहीं थी, बहुत दूर से मेरे पिताजी को बुला के वहाँ पे उनको बुलाया गया था पढ़ाने के लिए। He was one of the three teachers beginning the education thing in our village. और हमारे गांव में 3 शिक्षकों में से एक वो भी थे जिन्होंने वहाँ पे शिक्षा की नींव डाली। He taught me. उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। He taught how many? 45 years. He had a vast, large number of students as his, class students. और 45 सालों तक उन्होंने शिक्षक की सेवा की और बहुत अनगिनत छात्रों को उन्होंने पढ़ाया। Maybe I had acquired some of the things of the teaching qualities in me by being a son of teachers, and also by the way I learned from being with the students, in the school. और हो सकता है कि शिक्षक परिवार से आने के कारण मैंने कुछ चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया होगा, पढ़ाने की योग्यताओं को, और कुछ इसलिए कि मैं छात्र के रूप में मैंने कुछ चीज़ों को ग्रहण किया होगा। Now if you ask me, what do you think about your teaching profession? अगर आप मुझसे आप पूछेंगे कि मेरे अपने शिक्षक के अनुभव के बारे में क्या बोलते हैं, I'll close my eyes and say that I will not trade it for anything else. और मैं आपसे यही कहूँगा आंखें बंद करके कि मैं किसी और चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। When I teach, when I see the faces of my students, और जब मैं अपने छात्रों के चेहरों को देखता था, what went through my heart was, Lord, what will they be in future? तो मैं देखता था कि परमेश्वर ही आने वाले भविष्य में क्या होंगे। The souls are so precious to God. और ये सारे प्राण परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। I poured out all what I could with that feeling in my heart. और मैं वो सारी चीजें इस भावना के साथ उनके जीवन में उन्हें दिया करता था। It was not in vain. और वो सब व्यर्थ नहीं है। I have seen the results God has given. और मैंने सारे चीजों के उत्तर को देखा है। When I humbly submitted to His will in my life. और जब मैंने उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया। So coming back to the Macedonian churches. और हम वापस मकेदोनिया की कलीसियाओं में आएंगे। So we cannot say that because we are in deep poverty, we cannot live. और हम ये कह नहीं सकते हैं कि हम बहुत ही कंगालपन में इसलिए हम नहीं देंगे। And following, what does he say? What does prove that? तो वो कैसे हमें उसकी कैसे हमें विश्वास होता है? These churches, in verse 4, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. और चौथे वचन में, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए। They heard that the fellow brethren in Jerusalem, they were in great poverty. They were suffering. उन्होंने सुना था कि यरूशलेम की कलीसिया जो है वो गरीबी में है और वो पीड़ा में है। They were not thinking about their suffering. और वो अपनी पीड़ा को नहीं देख रहे थे। They already were in deep poverty. और वो पहले से ही परेशानी में थे, गरीबी में थे। But they learned that some believers in Jerusalem, their own brethren, they were suffering.
और उन्होंने सुना था कि यरूशलेम की कलीसिया उनके स्वयं के अपने भाई लोग वहाँ पे गरीबी में जीवन जी रहे हैं। So they wanted to send whatever help they can through some other brothers who had been there. और उन कुछ भाइयों के द्वारा जो वहाँ पे थे उनके द्वारा कुछ सहायता को यरूशलेम की कलीसिया तक भेजना चाहते थे, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. विषय में हमसे बार-बार और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार-बार दुआ करने की, helping the poor believers in Jerusalem, they took it as a part of their ministry. और यरूशलेम में जो गरीब विश्वासी थे उनकी सेवा को उन्होंने अपनी स्वयं की सेवा की तरह ले लिया। They wanted to have fellowship in the ministry of the saints by giving something which they can. वो उस संगति को देने के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे थे। Giving 10 rupees is something. 10 रुपए देना ही, take 10 rupees. 10 रुपए ले लो। That was not how they did it. वो इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं कर रहे थे। They said we want to have the fellowship in the ministry of the saints. और पवित्र लोगों के साथ संगति करना उनके लिए महत्वपूर्ण। What they gave was very valuable, and it was not just a gift; it was a divine gift. और वो जो उन्होंने दिया था वो संगति महत्वपूर्ण थी, और जो वो दे रहे थे वो परमेश्वर की ओर से दिव्य था। I don't know how they collected, where they collected, but I know one secret. I found it here when I was reading it. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord, and then to us, by the will of God. 5 वचन, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। How is it possible when you are in deep poverty? How is it possible that you can be liberal? आप कैसे ये संभव है कि जब आप कंगालपन या गरीबी में हो तो आप बहुतायत से देने वाले बन जाएं? The secret is there. और यहाँ पे जो मुख्य कुंजी है वो ये है, Above everything, they gave themselves to the Lord. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को दे दिया। They were not people who gave something and then walked away. और ऐसे लोग नहीं थे कि उन्होंने दिया और वहां से चले गए। They have the greatest treasure, unlimited, the source of all treasures with them. और उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना था, उस खजाने की जो मूल चीज उनके पास ही थी। That's why I said in the beginning, if everything fails, if Jesus is with you, you have, that's it. इसलिए मैंने शुरुआत में ही इस बात को कहा कि जब सारी चीजें निराशा में बदल जाती हैं, उस समय अगर यीशु हमारे साथ है तो वही पर्याप्त है। I have a promise in the Bible for that. और उसके लिए हमारे पास बाइबल में वचन और प्रतिज्ञाएं हैं। Christ is our, यीशु मसीह हमारे लिए पर्याप्त है। He is our sufficiency. और वही हमारे लिए पर्याप्त है। Nothing else will make us sufficient. और कोई और चीज जो है वो हमें सुकून नहीं देगी। If Jesus is with us, we are sufficient. और अगर यीशु हमारे साथ है तो पर्याप्त है। Because He will not give us orphans. That is what Jesus said. I will not leave you alone. I will be with you even unto the end of the world. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, और इस युग के अंत तक वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। Did he say it as a joke? क्या उसने ये बात मजाक के रूप में कही थी? Go into all the world and preach the gospel. I will be with you even to the end of the world. क्या उसकी बात मजाक में कही थी? जाओ और सारे जगत में जाओ और मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, के बाद उसने मजाक में कही थी। God never goes back on His promises. और कभी भी परमेश्वर प्रभु अपने वचनों से या प्रतिज्ञाओं से पलटता नहीं है। As you go on witnessing, saying Jesus is good, Jesus saves, what follows you?
everything that you need to follow. He will not leave you. जब हम इस बात को बोल के भी जाते हैं कि यीशु उद्धार करता है, तो क्या चीजें पीछे चलती हैं? हर एक वो बात जो हम कहते हैं और मानते हैं। Your priority determines, says who you are. आपकी प्राथमिकताएं बताती हैं कि आप क्या हैं। Who occupies the first place in your life? और हमारे जीवन में पहली जगह हम किसको देते हैं? Seek ye first the kingdom of God. और उसके राज्य धर्म की सबसे प्रथम खोज करो। And then go hungry, go without anything. Then all these things. I don't know the, that may be wrong, please. I would like to have all these things. That means all that you need will be added. क्या इस पर ये लिखा है कि इसके बाद फिर जब भूखे रहो या कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा है कि ये सारी वस्तुएं, सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी जो हमें आवश्यकताएं हैं। You all know this. Should I ask you whether you believe that or not? क्या आप ये सब जानते हैं? क्या मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? How many of you really hold on to that saying? I will seek first the kingdom of God. I will look after His affairs, and then, as He had promised, He said, I will look after your affairs. लेकिन कितने जन हम इस बात को सत्य में, इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हम इन बातों को पकड़े रहते हैं और सच में पहले स्थान में उसको खुश करते हैं। When you give the primary place for God's thing, God will give you what you want upon this earth. और जब हम प्रथम स्थान जब हम परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर की पृथ्वी के ऊपर हमें सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। We are witnesses to that. और हम इस बात की गवाह हैं। Just and see. फर्क नहीं देखना है। He is not a deceiver. और वो धोखा देने वाला नहीं है। Satan is a deceiver. और शैतान धोखा देने वाला है। He promises so many things. और वो बहुत सारी चीजों की प्रतिज्ञा करता है। And then there you will have nothing, and then he will run away. और वो कुछ भी नहीं देखा और वहां से वो भाग जाएगा। Give yourself to the Lord first. पहले अपने जीवन को प्रभु को दे दे। And then it is His responsibility. और फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है। Lord, as you have said, I have given myself to you. Now you do what you want. और हम कह सकते हैं कि Can you leave it like that in the hand of God? कि प्रभु पहले मैंने अपने आप को दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी। क्या हम इस प्रकार के जीवन को जी सकते हैं? We have done it as a family. I have done it as a person. And I'm standing here to talk to you that हमने परिवार के रूप में ऐसा किया है, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा किया, और मैं आप गवाही के रूप में आज आपके सामने खड़ा हूँ। God is not a respecter of persons. अब परमेश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। Who honors it, who gives it the first place in his life, the rest he will do that. जो उसको सम्मान देता है, जो उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है, परमेश्वर उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। This morning Dr. Kosh was saying about Dr. Suresh, and he shared with us one story. He was sitting there, very dejected, and there was, as you said, there was not any money or anything. How do I put on, put I give money to the 72 people and photos? And then he saw a sparrow sitting outside and very peacefully picking up things and doing it. He told me. When I looked out, I saw a small bird sitting, and we also can see someone sitting and picking and eating. If God cares so much for those plants, Jesus himself said, "Are you not precious to me?" आज सुबह के समय जिस प्रकार से डॉक्टर कोशी बता रहे थे कि एक समय था कुरियन साहब के जीवन में कि जब उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, और उस समय पे उन्होंने कुछ गौरियों को देखा, कुछ चिड़ियों को देखा जो वहाँ पे दाना चुग रही थी, और हमें भी उनको दिखाया और हमने भी वहाँ से चीजों को सीखा कि परमेश्वर जब एक छोटी सी चिड़ियों की चिंता करता है तो उससे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। It's not the
single case of Dr. Kurian or one individual. ये केवल एक डॉक्टर कुरियन के केवल एक अकेला अनुभव नहीं है। It can be, should be the experience of each and every one. ये हम में से प्रत्येक का अनुभव होगा या हो सकता है। Now, coming back to this, I wanted to stress one of the marks of the people of God who have got the grace of God. और उन लोगों को जिन लोगों को के ऊपर अनुग्रह था उनके कुछ चिन्हों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। One of the fruits of grace is the quality of sharing. और अनुग्रह का जो एक विशेषता है वो ये है कि हम बांटना सीख लेते हैं। Sharing everything. और हर एक चीज को बांटना। Above everything, we share the gospel. और सबसे ऊपर बात तो ये है कि हम सुसमाचार बांटने वाले बन जाते हैं। We don't stop there. और हम रुकते नहीं हैं। We share everything. और हम सब कुछ बांटते हैं। We share in our abundance, we share in our poverty, we share our sorrows, we share our joys, everything. हम अपनी बहुतायत में बांटने वाले बन जाते हैं, हम अपनी कमियों में, हम अपने दुखों में और अपनी खुशियों में भी बांटने वाले बन जाते हैं। Now, this portion which I read emphasizes the spirit of sharing. और जिस भाग को भी हमने पढ़ा, वहाँ पे इस बांटने की आत्मा के विषय में हमने अभी हम सीख रहे हैं। That spirit comes from the abounding grace of God upon you. और ये आत्मा हमें बहुतायत के अनुग्रह के माध्यम से आती है। Not because you have or have not. और चाहे वो हमारे पास या ना हो। They were imploring, please take this also, take this also. I don't know from where they got all these things, but they said, hey, imploring us, not just saying, imploring me, please, take it to our dear brother in there in the. तो जब ऐसा होता है तो और ले लो और बहुतायत से हम बांटने वाले बन जाते हैं। That spirit comes. और ये आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। The grace of sharing. और ये अनुग्रह के द्वारा हमें पास ये बांटने की आत्मा आ जाती है। And you will have understood, and I have seen that Christians are known for their sharing. They should be known for sharing, but as we read history, as we go through these, that Christians are marked for their sharing character. और अगर हम इस बात को देखें तो इतिहास में हमें मालूम होगा कि जो मसीह लोग हैं वो अपने इस देने और बांटने की आदत के बारे में जाने जाते हैं। Giving and sharing, they go together. और देना और बांटना एक साथ जाता है। If you read through the Acts, the book of Acts, you see that everybody is marked for sharing. और अगर हम लोग प्रेरित की काम की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे वहाँ पे हम बांटने के बारे में और देने के बारे में सीख सकते हैं। May I mention to you one more instance from the Acts? प्रेरित काम की पुस्तक से आपको कुछ चीजें बांटना चाहूँगा। Chapter 4, चौथा अध्याय verse 32. और उसका 32वां वचन। From 32 to 32, 33 और 34। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। Now, this was what they did at that time, but I am not saying that we must do it exactly as they did, but it teaches us something. What is that? उस समय की कलीसिया जो थी इस प्रकार से करते थे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इसी प्रकार से करना शुरू कर दें, लेकिन यहाँ से हम कुछ विशेष बातों को सीख सकते हैं। In one thing,
They were of one mind. और प्रथम बात तो ये है कि वो सब एक मन के थे। What was that? और वो क्या है? Those who had did not say that it is mine. और जो जिनके पास होता था वो ये नहीं बोलते थे कि ये मेरा है। Can you say that? क्या हम ये बात कह सकते हैं? Which is mine, say that it is not mine. जो आपका है क्या आप ये बात बोल सकते हैं कि आपका नहीं है? It belongs to everyone. ये वो सबका है। That is the attitude, that is the thing that we have to cultivate. Not that we should today go and sell your house and then distribute it. If God says that you do it, that is not the main thing. It is the principle there. और जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है कि जो बातों पर रखते थे कि जो चीजें उनकी होती थी उसके बावजूद भी वो उसके ऊपर अपना हक नहीं जमा करते। The day you can say that what you have is not yours, it is everyone's, then things change. और जब आप इस बात को कहना सीख जाएंगे कि जो चीजें आपकी हैं वो आपकी नहीं है परंतु सबकी हैं, उस दिन से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। Those who believed were of one heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but had all things in common. और उनके पास जो भी चीजें होती थी वो स्वयं उनकी नहीं थी लेकिन वो सारी चीजें आपसी में साझे की थी। Have you ever thought of it seriously? क्या आपने इस चीज के बारे में सच में गंभीरता से सोचा है? It is one thing to read it. There it is. Okay. मुझे एक बात पढ़ेंगे मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं। This morning I urge you to take it seriously. और मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप इस बात को गंभीरता से लें। You'll see what happens. You'll see the result. और आप परिणामों को देखेंगे आने वाले दिनों में। I assure you that you will not be poorer for that. और मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप इससे गरीब नहीं हो जाएंगे। I already told you God is not a respecter of persons. मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि परमेश्वर पक्षपात नहीं है। He's impartial. और वो पक्षपात नहीं करता है। Those who honor him, he honors. Amen. और जब हम उसका सम्मान करते हैं तो वो हमारा Put सम्मान him in the करते हैं। first place. Give him all the primary importance. और उसको प्रथम स्थान अपने जीवन में दें, पहली श्रेणी में उसको रखें। Every day say yourself that Christ is everything. और सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दें कि मसीह मेरे लिए सब कुछ है। Because if he is with me, is what all things he has promised and what all things he has said about me will come true. और जो भी चीजें उसने मेरे लिए मेरे बारे में कही वो सारी चीजें सत्य हो जाएंगी। So nobody had to tell if nobody had to tell them do this, do that. No, they were of one mind in serving the Lord. कोई भी उनको धक्का दे के बोलता नहीं था, पीछे नहीं लगता था कि दो करो, लेकिन वो अपना एक मन होने के कारण उन चीजों को करते थे। I know some of the fights going on between God's people. और मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में देखा है कि किस प्रकार से आपस में लड़ते रहते हैं। Evangelists, सुसमाचार प्रचारक हो, preachers, प्रचारक हो, the one and can face the other. और I have seen that myself. और मैंने अपनी आंखों से देखा है God tell me it is not true. और वो शक्ल उनकी देखना पसंद नहीं करते। आप ये मत कहिएगा सच नहीं हो सकता। He is coming now. He is coming to steal my sheep. और वो आ रहा है मेरी भेड़ों को चराने के लिए। Let him steal the sheep. और उसको भेड़े चराने दो। You have got enough more sheep in this world. और आपके पास इस संसार में और भी भेड़े हैं। Don't think like that, you know. और इस तरह से सोचना बंद कर दीजिए। You should know what you are doing. आपको ये जानना है कि आप क्या कर रहे हैं। If you know what God wants you to do, go on doing it and don't look here and there. Oh, he is doing that, he is doing this. That is not your business. तो जो चीज परमेश्वर आपसे चाहता है अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो आप इस कार्य में ना लगे कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। आपके लिए आपका ये काम नहीं है। For example, Dr. Koshi is doing so many things here. और उदाहरण के तौर पर डॉक्टर कोशी हमें बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। Tell me, he is doing it, I am not able to do it. और मैं तो देख के काम ये इतना सब कर रहा हूं। If I could do it, I would have been better than Koshi. अगर मैं कर पाता था तो मैं डॉक्टर कोशी से शायद अच्छा कर लेता। Get lost.
Let him do what God has given him to do. और जो वो कर रहे हैं उनको करने दे जो परमेश्वर उनसे चाहता है Do करना। you know what God wants you to do? क्या आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है? Make sure of that. आप उस चीज के लिए सुनिश्चित हो जाइए। That's what Peter says. Make your calling and election sure. और इसीलिए पत्रस इस बात को कहता है अपने बुलाए जाने के लिए सुनिश्चित हो जाओ और चुने जाने के लिए सुनिश्चित। What has God called you for? परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है? Not the other evangelists. कि दूसरे सुसमाचार प्रचारक को नहीं, You. आप। Everyone is important for God. हर एक जन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। Because क्योंकि He gave everything that He had for each one of us. और जो भी उसके पास था वो सब हम में से प्रत्येक के लिए उसने दे दिया। It is said that if there was only one person in the world, that is you, even then God would have, Jesus would have gone to the cross. इसी इस प्रकार से कहा अगर इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति होता और वो आप होते तो उसको बचाने के लिए वो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में If you are the only one person in this world, Praise the Lord. and then God will look down and He wants to save you. अगर आप केवल अकेले ही होते तो वो परमेश्वर आपको ऊपर से नीचे देखता। You are important for God. आप महत्वपूर्ण हैं परमेश्वर के लिए। Everyone is important for God. हर एक जन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। Put the name of anyone. आप किसी का भी नाम रख दें। I am important for God. मैं महत्वपूर्ण हूँ। I should know what He wants me to do. और मुझे ये जानना आवश्यक है कि वो क्या चाहता है मैं उसके लिए करूँ। If I know it, go on doing it. अगर आपको मालूम है तो आप उसको करने में लग जाएं। That my brother, that he do what he God has given him to do. और वो आपका भाई क्या कर रहा है परमेश्वर ने जो उससे बोला उसको वो करने दें। They are not supposed to get into the business of other people. हमें दूसरों के काम में कानून आने की आवश्यकता नहीं है। Mind your own business. अपने काम का ध्यान रखें। I mean it. और मैं उसको मतलब से बोल रहा हूँ। Dear brothers and sisters, evangelists, and mind your own business. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों सुसमाचार प्रचारकों अपने काम पे ध्यान रखें। And your brother, he will mind his own business. और आपका भाई आपका मित्र जो है वो अपने काम पे Everyone ध्यान is, रखेगा। everyone is minding the work of the Lord. और सब जन परमेश्वर की ही कार्य को कर रहे हैं। God knows how to lead direct everyone, each and every. और परमेश्वर को मालूम है उस व्यक्ति के साथ उसको कैसे निपटना है। Bishop Saib is sitting in front of me. और यहाँ बिशप साहब हमारे आगे बैठे हुए हैं। Oh, I should also become a bishop. और मुझे भी बिशप बनना है। What will I do? और मैं क्या करूँगा? That's not my call. तो मेरी बुलाहट तो है। I don't know what will I do becoming a bishop. और मुझे ये भी नहीं मालूम है बिशप बनने के लिए करना क्या पड़ता है। I know what to do just like that. और केवल बस ऐसे रहना मुझे मालूम है। Are you sure? Do you know what God wants you to do? क्या आप इस बात के लिए सुनिश्चित हैं, जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? Make sure of it today, now, even if you have not done it yet. अगर आपने अभी तक इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं है और अगर आप नहीं जानते तो आज इस समय इस बात को सुनिश्चित कर लें। Ask the Lord, प्रभु से पूछें, Lord, what will you have me to do? और प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? There is somebody who asked that. There is somebody who asked और that. किसी ने इस तरह से पूछा था, There is not a small person. और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं He is an enemy of Christ. और वो मसीह का विरोधी है। When God dealt with him, और जब परमेश्वर ने उसके साथ when he fell to the ground, तो नीचे गिरा दिया गया। he asked, Who are you, Lord? उसने कहा कि कौन है? He was going to destroy all people who belong to the Lord, and now he says, Who are you, Lord? और जब वो जा रहा था उन सारे लोगों को नाश करने के लिए प्रभु के लोगों को नाश करने के लिए उसने पूछा तू प्रभु तू कौन है? And then he said, What will you have me to do? उसने कहा मुझे तुझसे क्या काम Tell है me what I should do. और मुझे क्या करना है? Poor blind Paul. 3 days he was blind. Go there and tell me what. और पौलुस 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उसको बताया गया उसे क्या करना है। So we should know. Paul asked, Saul asked, Lord, what will I need to do? What should I do? Tell me. शाऊल ने पूछा कि प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना है। Every day ask God. Every day ask God. और प्रतिदिन परमेश्वर से
पूछें, Lord, what will you have me to do today? और प्रभु आज मेरे को आपके लिए क्या करना है, आप क्या चाहते हैं मैं आज आपके लिए करूं। Live one day at a time. और एक दिन में एक बार जिए। Don't have long life, or do that in 30 years, I will have this meeting. Every day is enough. आप ऐसा मत करें कि 30 साल बाद मैं ऐसा करूंगा, आने वाले वर्षों में ऐसा करूंगा, आज के लिए ही कार्य करें। Make sure that Jesus is there. और ये बात के लिए सुनिश्चित हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। That you have nothing else. और चाहे कोई भी चीज ना हो, You will know that He is enough. और आप जान लेंगे कि वो पर्याप्त है।